Arise, awake, and stop now, till the goal is reached. The great words of a great thinker and great philosopher, Swami Vivekananda. Little Narendranath Dutt was born to enlighten the world, the India, and the people of India with his enlightening words and philosophy. The wandering monk finally became Swami Vivekananda. Today, we have gathered here to celebrate National Youth Day on the occasion of the birth anniversary of Swami Vivekananda. To start the program, first of all, I would like to request our Honorable Principal Sir and Vice Principal Ma'am and the teachers to garland and pay floral tribute to the photograph of Swami Vivekananda. Yes. The floral tribute to the portrait of Swami Vivekananda, a speech presented by Shubham, class 12D, on Vivekananda's philosophy to bring the youth of India forward to make India a better place to live. Shubham 12D. Good morning, respected Principal Sir, Vice Principal Ma'am, teachers, and all the heroes of tomorrow who will define the future. Wishing you all a very warm and happy National Youth Day. A great man once said, "Take risk in your life. If you win, you may lead. If you lose, you may guide." To honor the birth anniversary of that great philosopher, Dr. Swami Vivekananda, our school is organizing this ceremony to remind us and guide all of us the duties we need to serve for our country. History is evident that the next generation has been the answer to solve the further problems. As time passes, it is required to adopt a change and bring a change in the society. The youth is capable of doing. We can bring a change in society. Swami Vivekananda once said, my faith is in the younger generation." Indian youth also played an important role to make our country free from British rule. The youth has the power to change the world. When we are united, we can make the world a better place to live. And when we are divided, we also have the power to destroy the world. Thank you. Very good, Shubham. You presented your speech in a very nice manner. Now I request Sudhakar Pandey sir, PGT Social Studies, to present his views on the occasion. परिवार में हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी का झुकाव आध्यात्म के प्रति बचपन से ही था। वे बंगाल के धर्मगुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी से काफ़ी प्रभावित थे और अपने बचपन में ही उनके साथ हो गए थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के मृत्यु के पश्चात स्वामी विवेकानंद ने पूरे भारत की यात्रा की और ब्रिटिश भारत में भारतीयों की दशा का संपूर्ण अध्ययन किया। तत्पश्चात वे उन्होंने अमेरिका की यात्रा की। अमेरिका की धर्म संसद में उन्होंने भारतीय
इतिहास को एवं भारत के दर्शन को बखूबी प्रचारित किया। स्वामी विवेकानंद जी को एक राष्ट्रभक्त संत के रूप में जाना जाता है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। For your nice presentation. Now I request Dharmendra Sir, PGT History, to present his views on the occasion. आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदया, प्यारे शिक्षक साथियों एवं बच्चों, आज हम लोग वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय युवा दिवस एवं राष्ट्रीय युवा महोत्सव मना रहे हैं। यह दिवस हम लोग स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं। आज ही के दिन 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में नरेंद्रनाथ दत्त के रूप में हुआ था। वह भारत के एक महान मनीषी थे जिन्होंने भारतीय दर्शन, वेदांत और योगा से पाश्चात्य जगत को परिचित कराया। वह भारत के वह प्रखर विद्वान थे जिन्होंने 1893 के शिकागो धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया और पूरी की पूरी उस संसद को अपने भाषण से एकदम आलोकित कर दिया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत हमारे अमेरिकी भाई बहन के रूप में किया, जो वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही अनोखी बात थी। इसके साथ साथ स्वामी विवेकानंद का योगदान भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में था। उन्होंने स्वयं तो नहीं लेकिन बौद्धिक रूप से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को अपना समर्थन दिया। इसके साथ साथ उन्होंने भारत की गरीबी, भारत के करोड़ों पिछड़े दलित लोगों के लिए भी आवाज उठाई। उन्होंने कहा था कि एक भूखे के लिए ईश्वर से ज्यादा रोटी की जरूरत है। इसके साथ ही अपने गुरु रामकृष्ण के नाम पर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो उस समय से लेकर के आज तक अपना योगदान समाज में दे रहा है। तो हमें स्वामी विवेकानंद के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए, जिससे कि हम अपने देश को और आगे विकास के पथ पर अग्रसर कर सके। जय हिंद। For your excellent presentation. Now I request our most worthy and honorable principal, Mr. R.C. Pandey, to present his views on the day, National Youth Day and Swami Vivekananda. प्यारे बच्चों, आपको ढेर सारा प्यार। प्रिय अभिभावक, विद्वान शिक्षक साथियों व इस वर्चुअल सभा में उपस्थित समस्त श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मित्रों व प्यारे बच्चों, आज हम इस सभा में 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म तिथि को समारोहित करने के लिए एकत्र हुए हैं। इस दिशा में डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा देश में 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस व इस वर्ष 12 से 16 जनवरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव भी आयोजित किया गया है। इसी क्रम में आप भी, मेरे पूर्व आए विद्वान वक्ताओं ने आपको स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय दिया है। उसी क्रम में मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसा कि अभी आपने जाना, स्वामी विवेकानंद जी अर्थात नरेंद्रनाथ दत्त जी, जिनका जन्म एक विद्वान व शिक्षित परिवार में हुआ, जो कि समाज में धर्म को एक लॉजिकल सोच के साथ, एक तर्क की सोच के साथ व स्वतंत्र विचारों के साथ समाज में स्थापित था। ऐसे परिवार में पले बड़े होने के कारण उनकी सोच भी धर्म के प्रति बड़ी तार्किक थी। वह अक्सर इस
खोज में रहते थे और विद्वान लोगों से ये जानने का प्रयास करते थे कि क्या ईश्वर का अस्तित्व है, और उनकी ये जिज्ञासा श्री रामकृष्ण देव जी के द्वारा पूरी की गई, जिन्हें आज हम श्री रामकृष्ण परमहंस के नाम से जानते हैं। श्री नरेंद्रनाथ दत्त अर्थात स्वामी विवेकानंद जी का जीवन आज भी देश के युवा के लिए एक आदर्श है। उन्होंने अपने अच्छे समय भी देखा परिवार में, और बड़ा एक संघर्षपूर्ण समय भी देखा जब मात्र उनकी 20-21 वर्ष की आयु में ही उनके पिता का निधन हो गया। उस समय वे रामकृष्ण परमहंस जी के संपर्क में थे। उन्हें एक दो रास्ते दिखाई दे रहे थे। एक था कि हम वापस अपने परिवार को सपोर्ट करें, और दूसरा था कि हम वह अपने को बिल्कुल एक साधु के रूप में परिवर्तित करना चाहते थे। रामकृष्ण परमहंस जी जो उनके गुरु थे, उन्होंने रास्ता दिखाया कि और उन्हें सुझाव दिया कि तुम संघर्ष करो और अपने अंदर की शक्तियों को पहचानो। स्वामी जी ने अपने गुरु की बात को मानते हुए एक आदर्श जीवन व्यतीत किया, और जितना भी ज्ञान और चेतना उन्होंने अर्जित की, उसका लाभ पूरे देशवासियों और बल्कि न केवल देश वरन विश्व के लोगों को बांटने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पित किया। उनके धर्म के प्रति जो सोच थी वह तार्किक थी, प्रगतिवादी थी, और साथ ही विश्व बंधुत्व से ओतप्रोत थी। आपने पढ़ा होगा बच्चों व साथियों, 1893 में जो धर्म संसद में उन्होंने प्रतिभाग किया, उस आर्ट इंस्टीट्यूट हॉल में, जिसमें पूरे विश्व के करीब 7,000 विद्वान साथी उपस्थित थे, उनके सम्मुख उनका वह भाषण देने का प्रथम अनुभव था। और उन्होंने इतने आत्मविश्वास के साथ अपने भाषण की शुरुआत करी और अपनी बात इतनी तार्किक ढंग से रखी कि दूसरे दिन सभी समाचारों में वह उस पूरी धर्म संसद के सबसे प्रसिद्ध व विद्वान वक्ता के रूप में स्थापित हुए, और इस तरह से उनको पूरे विश्व में ख्याति मिली। उसके पश्चात उन्होंने विश्व के कई देशों का भ्रमण किया, भारत वापस आए और यहाँ पर बराबर देश के युवाओं को चेतना जागृत करने का प्रयास किया। उनके जीवन से बच्चों हमें सीख लेने का यह अवसर प्राप्त होता है कि सारी जो शक्तियां हैं, सारी चेतना हमारे अंदर ही है। एक साधारण मनुष्य क्या करता है, अगर वो कुछ असफल होता है तो पहला प्रयास होता है कि अपनी कमियों, अपने दोषों को अपने पड़ोसी या अपने किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर उसे मढ़ देना। अगर ये नहीं हो सका तो उसे ईश्वर के ऊपर मढ़ देना कि ईश्वर ही मुझसे खुश नहीं थे, या अगर वहाँ भी बात नहीं बनी तो भाग्य को दोष दे देना। स्वामी विवेकानंद जी का ये कहना था कि सारी शक्तियाँ हम में खुद ही निहित हैं, हमें उन्हें पहचानना है, जिसके लिए हमें आचार्य या गुरु की आवश्यकता होती है। हम गुरु की मदद से अपने भीतर की शक्तियों को पहचानें और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने को हम समर्थ बना सकते हैं। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है that everybody has a wish to win, but there are very few who have a will मतलब इच्छा शक्ति। There are very few who have a will to prepare to win। हम जीतना तो सब चाहते हैं, लेकिन जीतने के लिए जितनी मेहनत, जितनी लगन, जितने प्रयास की आवश्यकता है, वह उसकी तैयारी करने वाले कुछ ही लोग होते हैं। तो हमें उन कुछ लोगों में अपना स्थान बनाना है। स्वामी जी का धर्म के प्रति, विकास के प्रति जो दृष्टिकोण रहा है वह कुछ इस तरह का था कि आज उन्होंने जब पाश्चात्य के वेस्टर्न कंट्रीज़ को घूमा तो वहाँ पर भी लोगों को कहा कि आपका एक परमानेंट सक्सेस, एक परमानेंट डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी होगा जब आप
भारतीय जो हमारे वेद हैं उनका जो ज्ञान है उसको भी आप अपने विकास में समायोजित करें। तो उनका आज के युवा आप सबके लिए संदेश ये है कि हम सबसे पहले तो अपनी शक्तियों को पहचानें, अपने दोषों को खुद प्रयास करके उन्हें दूर करने का प्रयास करें, दूसरों को उस पर ना मढ़ें और पूरी लगन, मेहनत और इच्छा शक्ति के साथ अपने प्रयास करें। वो हमें अध्ययन करना हो या खेल कूद में प्रतिभाग करना हो या अपने चरित्र निर्माण करना हो, प्रयास करें कि आप दूसरों की बुराई से बचें, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला, और एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए और प्रेरित करें। राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड, जैसा कि विवेकानंद जी ने कहा है। तो उनका ये संदेश लें, अपने को एक सुदृढ़ व्यक्तित्व दें, योगासन करें, अपने शरीर को सुदृढ़ बनाएं और अपनी आत्मा और मन को भी सुदृढ़ बनाएं और एक पूर्ण व्यक्तित्व के रूप में आप समाज में योगदान करें। इसी के साथ विवेकानंद जी के जन्मतिथि की आप सभी को बधाई। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। नमस्कार। For your inspiring speech and thought. I would like to thank all the respected teachers who presented their views on this program, and all the children. I wish a very happy National Youth Day. Thank you.